So hello students, welcome to ECA. As you are aware that the NDA exam has been rescheduled, right? So many of you might be having in preparation in the full swing, अच्छे से तैयारी कर रहे थे and might be waiting that yes, you might have set your deadlines by the August, right? Like for our batches, we have also a deadline of 30 July, so that after that we can have a quick recap of the concepts and questions. Right, so all you can say that the deadlines has been shifted, right? So it's time to have a look over what can be the possible effects and what you need to do in order to ensure that you keep up your pace for your goal, right? So rescheduled from 5 September to 14th of November, right? So more or less you can say approximately 2 months, approximately 60-70 days, you can say that you have that extended deadlines. But what is the best thing? I personally believe UPSC might have done to keeping in mind that the vaccines are not available for the candidates below 18. CAPF वगैरह का जो एग्जाम है and the civil service, they are not going to be shifted. Reason they are 18 plus, so they will be their vaccine are available. But जो NDA वाले बच्चे हैं they are 18 less than 18, so उनकी वैक्सीनेशन का अभी कोई थोड़ा प्रोसेस नहीं है, right? So शायद UPSC ने ऐसा सोचा, maybe nobody is sure. Right, so but I personally feel this step is blessing in disguise. This a rare golden opportunity once in a decade. शायद 10-20 साल में ऐसा कभी आता हो मौका. So this is a kind of opportunity for all of you guys, those who might be looking for the exam. Plus those guys who are writing the JEE mains. अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और जैसे JEE मेंस का प्लान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतर मौका है. You should write. I personally insist you must write this exam. If you are anywhere, let's suppose you're expecting yourself around 90 to 100 percentile anywhere. If you are expecting 90 percentile in JEE mains, NDA, you will definitely able to crack NDA. Nobody can stop you doing this, right? Maths will be halwa for you. It's a very easy thing for you. Maths and science cake walk. अगर आप जेई में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मैथ साइंस आपके लिए कुछ भी नहीं है एनडीए का. मतलब जेई का क्वेश्चन और एनडीए क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अंतर होता है. एनडीए इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. अब एनडीए में 300 में मैथ्स में 250 लाने वाले बहुत बच्चे हैं आजकल. पहले इतना नहीं होता था बिकॉज आजकल जेई वाले बच्चे पेपर दे रहे हैं, राइट? सो इफ यू आर ए जेई एस्पिरेंट or any other exam aspirants, competitive exams, you must apply for this NDA exam if you are eligible, right? If you have all this set eligibility criteria, do apply. It's a golden opportunity. Dates has been extended, right? Because you will have the ample amount of time. Apply करने के बाद 12th के रिजल्ट आने के बाद आपके पास लगभग approximately जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने, approximately 120 days you are free without any task. Reason, there is no college going to be starting, right? College abhi start hona nahi hai. So you have this free time where you have to be at home and prepare, right? कुछ नहीं करना आपको, घर बैठना है, सिर्फ तैयारी करनी है. इससे आसान काम कुछ भी नहीं है दुनिया में. You have to do nothing. आपको बैठे रहना है और तैयारी करनी है. This is the most easiest thing in the world. You have this opportunity. You know that कि आपका कॉलेज अगले 2 महीने कुछ नहीं होना. Nobody is going to give you homework. कोई काउंसलिंग नहीं होनी अगले 2 महीने. The only thing is that एक फॉर्म भरा है, सरकारी नौकरी की है, गवर्नमेंट जॉब की है जिसमें बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा कैरियर है और क्वेश्चन का लेवल भी टफ नहीं है, राइट? टू बी ऑनेस्ट, एनडीए पेपर इज नॉट टफ. आई पर्सनली बिलीव इट्स नॉट टफ, राइट? अब जिन्होंने तैयारी की होगी, मान लो एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई की, उनको तो टफ लगेगा ही. सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट एज वेल, क्वालिटी ऑफ फैकल्टी एज वेल, राइट? सो आई बिलीव दैट की एनडीए इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एग्जाम टू क्रैक इन इंडिया. इनफैक्ट सीडीएस शायद इससे टफ इसलिए हो जाता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन बट कंपटीशन के टर्म्स में. ये बेहतरीन मौका होता है. आप 12वीं क्लास पास करके आते हो, यू हैव वन इजी वे. आपको पता भी होता है कि आरडी शर्मा भी कर लेंगे तो भी हमारे जो है 120 में से 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन निकल जाएंगे. ऐसा कौन से एग्जाम में होता है? कहीं नहीं होता है. यू ऑलरेडी नो कि दिस आर द थिंग्स विच यू नो टू डू इन ऑर्डर टू क्वालिफाई, राइट? और इसमें बंदे क्वालिफाई होने की बात करते हैं. नोबडी टॉक्स अबाउट गेटिंग 600, right? But you can, easily you can, right? Any serious student जिसने 5-6 महीने पढ़ा हो ना, 500 उसको भगवान भी नहीं रोक सकते. It's so easy paper, right? So you have this kind of preparatory leave. आपको एक तरह से छुट्टी मिली है, घर बैठिए और प्रिपरेशन कीजिए. Enjoy the journey. कोई काम नहीं करना, पढ़ना है बस, right? Now the one thing what I feel that this will make an impact, since
Majority of the candidates have got time, some extended time to apply, to have a rethink. जेई वाले बच्चे भी सोचेंगे तो शायद वो अप्लाई करेंगे. एंड दिस टाइम पेपर भी तो टफ होना नहीं है, पेपर तो मॉडरेट ही रखेंगे बिकॉज स्कूलिंग चल नहीं रही है. दैट मीन्स द कट ऑफ विल बी हैविंग अ रिकॉर्ड हाई. This time for the NDA 2 2021 cutoff will definitely be having record high. चाहे बच्चे 20,000 ही पेपर क्यों ना दे, अल्टीमेटली लेना तो 7,000 को है. If they have to take 7,000 or 8,000 for the written exam, it doesn't matter that whether the number of candidates appearing for the exam are 50,000, 1 lakh or 1.5 lakh, because those who are serious will must appear for the exam. वो पक्का ही देंगे चाहे जैसा भी हो. आपने नहीं देना, आपको लगता है नहीं जी मुझे नहीं देना, तो आपके ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता. जो बच्चा अच्छा है वो पेपर देने जाता भी है, चाहे कोरोना था या नहीं है, उसने जाना है तो जाना है. राइट, ये सब एक्सक्यूज है कि हाँ इस बार बच्चे कम आए. मतलब मैं आई हैव सीन मेनी ऑफ द यूट्यूब चैनल्स हु टॉक अबाउट दिस कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेंस वाज लेस, तो कट ऑफ कम जाएगी. क्यों? 1.5 लाख 2 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें से 1 लाख बच्चे गधे ही होते हैं. राइट, गधे इन द सेंस दे डोंट स्टडी, वो बस फॉर्म भरते हैं. फॉर्म भरना फंडामेंटल राइट है, फॉर्म भर दो, क्या फर्क पड़ता है. पढ़ने वाले मुश्किल से 30,000 होते हैं. हार्डली 30,000 स्टूडेंट स्टडी फॉर द एग्जाम, और कंपटीशन सिर्फ वो 30,000 बच्चों में ही होता है, ना कि 1.5 लाख बच्चों में. सो इट डजंट मैटर वेदर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग आर 1.5 लाख और 2.5 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट, फर्क सिर्फ अच्छे बच्चों से पड़ता है, एवरेज बच्चों से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता. जेई में 15 लाख बच्चे दे पेपर, चाहे 5 लाख बच्चे दे पेपर, जिसको 300 में 300 लाना है वो 300 में 300 लाता ही है. राइट, एट एनी कॉस्ट. नीट में अर्लियर इट यूज्ड टू बी 10 lakhs, नाउ दिस वाज 15 lakh लास्ट टाइम, बट देयर वर गाइज, आई थिंक 2 guys, एक लड़की भी थी जिसने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया. सो अल्टीमेटली द थिंग इज दैट द क्वालिटी स्टूडेंट्स, क्वालिटी थिंग मैटर्स, द क्राउड डज नॉट मैटर. क्राउड से कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट, सो व्हाट्स योर प्लान? यू शुड मेक श्योर, अगर आप एक एवरेज और बिलो एवरेज भी स्टूडेंट है ना, तो मान के चलिए कि अगर आप 3-4 महीनों में व्हेन यू हैव नथिंग टू डू, यू हैव 12th पास, अगर आप 450 नहीं ला रहे हैं, इट्स ए क्राइम. राइट, अब नहीं ला सकते. इट्स ए मैच, यू नो, इट्स ए गोल्डन मैच, यू कैन से दैट, जहां हर बॉल पे चौका है. यू नो, ये एक ऐसा मौका है जिस मैच में हर बॉल पे चौका है आपके लिए. राइट, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग 450 प्लस दिस टाइम, अदरवाइज यू कैन नेवर एवर गेट दिस. अब नहीं तो कभी नहीं. इससे बेहतर तो खुशकिस्मत कोई नहीं हो सकता. राइट, इतना टाइम मिले और फिर भी कहे कि हाँ मेरे आए नहीं बिकॉज पेपर टफ था, ये फालतू की बातें हैं. पेपर टफ नहीं था, आपने पढ़ाई नहीं करी, आपको नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर टफ था. राइट, नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू. अभी तक जो करते आ रहे हैं बहुत सही है, आप पढ़ते रहिए, बट अब क्या करना है कि जैसे कोई चैप्टर करते हो, लेट्स सपोज यू आर डूइंग मैथमेटिक्स एंड यू आर टेकिंग अपॉन लाइक स्ट्रेट लाइंस, सो ट्राई टू मेक ए शॉर्ट नोट्स नॉट द डेफिनेशंस. राइट, अपने वर्ड्स में लिखो. मैं देखता हूं कुछ लोग शॉर्ट नोट्स खरीदते मैथमेटिक्स के, तो आई पर्सनली फील उनसे बड़ा बेवकूफ तो कोई नहीं है. मैथ्स के नोट्स, शॉर्ट नोट्स खरीदने का क्या मतलब है? जैसे डिस्गस्टिंग. राइट, आप खुद से बनाइए कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में व्हाट विल बी योर अप्रोच. राइट, सम ट्रिक्स खुद से डेवलप करें. राइट, कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन होगा तो पहले मुझे इस मेथड से क्रॉस चेक करना है. राइट, ये सब नहीं लिखना कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू जो है सो माइनस आई का पावर ये हो जाएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है. राइट, अपने वर्ड्स में आप शॉर्ट नोट्स बनाएं एंड ट्राई टू नोट डाउन 10-12 गुड क्वेश्चंस फ्रॉम अ गिवन टॉपिक, जिससे कि आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव शॉर्ट नोट्स एंड द सिमुलेटेड क्वेश्चन. सिमुलेटेड मतलब यूपीएससी टाइप क्वेश्चन, मजाक नहीं. क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई क्यूब, ये सब फालतू की चीजें हैं, इसमें समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है. राइट, नेक्स्ट टाइम बाउंड प्रैक्टिस. नाउ मेनी ऑफ द पीपल से दैट आई हैव अटेम्प्टेड ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स और समथिंग लाइक दैट. राइट, बट हैव यू नोटेड कि कितने टाइम में अटेम्प्ट किया? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 1 घंटे में आप कितने मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं वो करो, अपनी स्पीड पे वर्कआउट करो, दैट्स इंपॉर्टेंट. राइट, नहीं तो इट्स ए चीटिंग योरसेल्फ. एक्चुअली आप खुद को धोखा दे रहे हो. अगर आप कह रहे हो कि मैंने 40 क्वेश्चन कर लिए बट 2 घंटे लगाए, तो क्या किया? फिर तो बेकार है, लानत है. राइट, so you should have time bound practice. This will definitely increase your speed as well as accuracy, क्योंकि इन दोनों पे काम करना पड़ता है in order to have a good score. Expand your horizons. Horizons it means कि जो आपने अभी तक किया है, let's suppose कि कोई टॉपिक मिस हो गया हो, let's suppose you have not done statistics portion in mathematics, maybe आपने हिस्ट्री को नेग्लेक्ट किया हो एनडीए में. राइट, so try to add some value. राइट, आपके पास टाइम है तो थोड़े फिलर्स डाल लो.
आप हो सकता है आप सारा ना कर पाओ, बट जितने हो सकते हैं आप फिलर्स डाल लो कि चलो जो सिलेबस का टॉपिक है दैट आई हैव टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट इसके बारे में, जैसे इफ यू हैव गोन थ्रू द सिलेबस, विनोबा भावे के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट? आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, भूदान मूवमेंट सिलेबस में है। तो ऐसे छोटे छोटे जो फिलर्स है ना 5 ईयर प्लान, ये आप खुद से प्रिपेयर कर लो सो दैट इट कैन एड वैल्यू टू योर स्कोर, राइट? यूज योर टाइम टू एड वैल्यू टू स्कोर। नाउ आई पर्सनली इंसिस्ट दैट सिंस यू आर +2 मैथ्स पास 11 12, तो आपने 2 साल मैथ्स करा है, साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हो, कोचिंग भी कर रहे होगे, सो मैथ्स में यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग 180+। अगर आप 100 110 के पास हो ना, तो पर्सनली कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कट ऑफ, बट this is not a good score 110 120, right? Even I believe that average student, I remember last time it was the appearing +2 appearing student who has scored 74 correct in the mathematics, जबकि उसने सिलेबस में पूरा नहीं किया था, right? So that you have done complete syllabus, that means you can definitely score more than 80+ correct, right? So आप 150 160 से ऊपर जरूर लाए, इससे कम है मतलब आप में कमी है, आपके तैयारी में कुछ ना कुछ कमी है, you have to improve that. Next, GS out of 100, 50 is easily doable. That means you have to target 200+. English, anyone, any CBSE guy or the ICSE guy who has done 10th in English it's easy to score 30+ correct. So 120 130 तो बहुत आम बात है, इतना आप आसानी से कर सकते हैं. So this should be a score. अब इसमें कुछ माइनस भी होगा, because when you attempt there will be something which will go wrong, right? So कुल मिला के जब माइनस करोगे it will be minimum 450+ minimum at any cost. So keep going, अपना पेस आप बनाए रखें, right? ऐसे हमारा जो पहला बैच है that will be over by 20th of July. So we will be starting the second batch by 7th of July, right? That is, of course, government is still not allowed to go offline. So अगर government कहे तो offline कर ले, but since for the time being it's online, as the government permits for the offline, we will start offline, right? Any question, queries, suggestion? Definitely you can write us at official number 77105 48960. Thank you.